हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं स्टैंडर्ड 9 का चैप्टर एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम इन अवर चैनल कीर्तनाज एडवेंचर। सो अगर आपने अभी तक उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। इकोसिस्टम मीन्स द बायोटिक एंड abiotic factors and their mutual interaction form an ecosystem. So biotic factor means what? Biotic factors यानी plants, animals, living things, ये सब आते बायोटिक फैक्टर में। एंड एबायोटिक फैक्टर्स यानी सॉइल, एयर, माउंटेन्स, रॉक्स, ये सभी एबायोटिक फैक्टर में आते हैं। और इसमें ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड एबायोटिक फैक्टर यानी सॉइल और एयर, इनमें जो म्यूचुअल इंटरेक्शन होता है, ये इंटरेक्शन इकोसिस्टम में आता है। तो आइए देखते इकोसिस्टम में क्या क्या टॉपिक्स है, वही आज हम देखने वाले हैं। इकोसिस्टम, इसमें देखिए क्या क्या पॉइंट्स आते हैं। तो इकोसिस्टम में एबायोटिक फैक्टर्स एंड बायोटिक फैक्टर्स ऐसे दो पॉइंट्स आते हैं। Abiotic factors are divided into two, physical and chemical. तो फिजिकल फैक्टर्स जो है उसमें एयर, वाटर वेपर्स, मिनरल्स, सॉइल, सनलाइट, these points are included in the physical factors. Chemical factor is again divided into the two, inorganic substances and the organic substances. इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, ये सब और इससे भी ज़्यादा कुछ जो सब्सटेंसेस है वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में आते हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स आते हैं। तो दिस इज अबाउट द एबायोटिक फैक्टर्स ऑफ द इकोसिस्टम. Biotic factors are divided into three parts: producers, consumers, and decomposers. Producers are called as autotrophic, means they can make their own food, while these consumers and the decomposers are called as heterotrophic, means for food they are dependent on producers, and decomposers are depends on the producers and consumers. Producers means a green plant, and consumers in that animals comes. These animals are again divided into the primary consumers, secondary consumers, and the tertiary consumers. Primary consumers यानी herbivores, secondary and tertiary consumers means carnivorous animals. Primary consumers means herbivores, in that cow, goat means the animals which are depend on plants, that are coming into the primary consumers. And the secondary consumers means for food they are depend on the herbivorous animals. Tertiary means for food they depend on primary animals. Decomposers means small microbes, microorganisms, and these microorganisms they depends on the consumers and producers for food. So this is about a tree diagram of ecosystem, this chapter. First we will see that in the trophic level, primary consumers. Primary consumers means the herbivores. Herbivores यानी जो ग्रीन प्लांट्स या घास खाते, उन्हें क्या बोलते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर्स. तो ये जो प्राइमरी कंज्यूमर्स है, फॉर फूड दे डिपेंड ऑन द प्रोड्यूसर्स, मीन्स ऑन द ग्रीन प्लांट्स. एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं, काऊ, grasshopper, squirrel, elephant, this etc. These animals are the primary consumers. Now we'll see
the secondary consumers. Secondary consumers means the carnivores. For food they depend on the primary consumers, यानी ये जो वेजिटेरियन एनिमल्स है उनको खाते हैं. ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स से इसमें फ्रॉग, फॉक्स, ओल, स्नेक, ऐसे बहुत सारे जो एनिमल्स है ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं. फ्रॉग जो है, फॉक्स है, ये फॉर अ फूड डिपेंड्स ऑन द प्राइमरी कंज्यूमर्स यानी हर्बीवर्स एनिमल्स. एपेक्स कंज्यूमर्स दैट वी कॉल एज अ टर्शरी कंज्यूमर्स. तो ये जो एपेक्स कंज्यूमर्स है उनके ऊपर कंज्यूमर्स नहीं होते. दिस एनिमल्स फॉर अ फूड डिपेंड ऑन द हर्बीवर्स. एग्जाम्पल इज अ टाइगर, lion. So these animals are depend on herbivorous animals for a food. तो ये हर्बीवर्स एनिमल्स को ही खाते हैं, इनको खाने वाले ऊपर कोई नहीं है, इसलिए इसे एपेक्स कंज्यूमर कहते हैं. See in the next slide types of ecosystem. There are two types of ecosystems. First is aquatic ecosystem and second one is the terrestrial ecosystem. Aquatic ecosystem यानी जो पानी के अंदर होती है उसे aquatic ecosystem बोलते हैं. एंड terrestrial ecosystem यानी that on land, जो जमीन के ऊपर होती है उसे क्या बोलती है? terrestrial ecosystem. Aquatic ecosystem means what? The 71% of the earth's surface is covered by water and only 29% of earth's surface is covered by land. Therefore, the study of aquatic biomes becomes very important. According to the area, aquatic biomes are widespread. एक्वेटिक इकोसिस्टम्स ये फ्रेश वाटर इकोसिस्टम होती है, मराइन इकोसिस्टम होती है एंड क्रीक इकोसिस्टम. ऐसे तीन टाइप में होती है. फ्रेश वाटर इकोसिस्टम यानी लेक, रिवर, दिस इज कमिंग इनटू द फ्रेश वाटर इकोसिस्टम. मराइन इकोसिस्टम मीन्स सी वाटर, दैट इज कमिंग इनटू द मराइन इकोसिस्टम. So this is about the aquatic ecosystem. Next topic is a food chain and the food web. So यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि फूड चेन किसे कहते हैं एंड फूड वेब किसे कहते हैं. फूड चेन मीन्स व्हाट? फीडिंग रिलेशनशिप्स अमंग द प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड सैप्रोफाइट्स इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड अ फूड चेन. तो यहाँ पे रिलेशनशिप है, किसके बीच में है? प्रोड्यूसर्स यानी ग्रीन प्लांट्स, कंज्यूमर्स यानी ग्रीन प्लांट्स को खाने वाले प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड वही प्राइमरी एंड सेकेंडरी कंज्यूमर्स पे रहने वाले सैप्रोफाइट्स. इनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो फूड चेन में आती है. फॉर एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे ग्रास है, ग्रास के ऊपर ग्रास होपर से इनको खाने वाले फ्रॉक्स है. तो ग्रास प्रोड्यूसर्स हो गए और ग्रास होपर्स एंड फ्रॉक ये प्राइमरी कंज्यूमर्स हो गए. इनको खाने वाले स्नेक्स सेकेंडरी कंज्यूमर्स. स्नेक्स को खाने वाला ईगल ये एपेक्स कंज्यूमर्स है. और ईगल, स्नेक, फ्रॉक ये मरने के बाद इनको खाने वाले ये डिकम्पोजर से मशरूम. तो ये जो आप देख रहे इसे एक फूड चेन बोलते. सेकेंड फूड चेन देख रहे हम लोग, जैसे प्लांट से उसको खाने वाले रैट, रैट को खाने वाला स्नेक, स्नेक को खाने वाला ईगल. तो ये एक दूसरी टाइप की फूड चेन हो गई. तो यहाँ पे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एपेक्स कंज्यूमर्स ऐसे आपको दिखाए गए. ये एक फूड चेन हो गई. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि ग्रास है वो प्रोड्यूसर है, उसको खाने वाले प्राइमरी हर्बीवर्स एनिमल्स गोट है, उसको खाने वाले टर्शरी एनिमल्स है यानी टाइगर है. तो
ऐसे टाइप्स के ये जो एग्जाम्पल दिए ऐसे क्या है, फूड चेन होती है। नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग फूड वेब। फूड वेब्स आर इंट्रिकेट एंड कॉम्प्लेक्स, दैट इज दीज आर इंटरवाइनिंग ऑफ डिफरेंट फूड चेन। तो यहाँ पे इन नेचर द फूड चेन्स आर नेवर सिंपल। वन ऑर्गेनिज्म कैन फीड्स ऑन वैरायटी ऑफ द अदर ऑर्गेनिज्म दैट वी स्टडीड। तो फूड वेब में बहुत सारी जो फूड चेन्स है वो इंक्लूड होती है, यानी बहुत सारे फूड चेन्स मिला के एक फूड वेब तैयार हो जाती है। उसका हम लोग एग्जाम्पल अभी देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए कि एन इंसेक्ट्स में ईट लीव्स, सीड्स और फ्रूट्स। तो इंसेक्ट सीड खाते हैं, लीव्स खाते हैं एंड फ्रूट्स खाते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा दिस insect has many predators such as a frog, lizard, bird or mammals like the rat। तो ऐसे ये इंसेक्ट को खाने वाले बहुत सारे प्रेडेटर होते हैं। नेक्स्ट लिंक आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे बर्ड्स है, तो बर्ड्स ग्रेन्स खाते, रैट्स को खाते, ये एक लिंक होती है। तो यहाँ बहुत सारी लिंक्स एक साथ कनेक्ट हुई है। जैसे मंकी है, मंकी को टाइगर खाता है, मंकी पेड़ के ऊपर होता है उसके फ्रूट्स खाता है, और डियर को टाइगर खाता है, डियर्स प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। ऐसी बहुत सारी लिंक्स एक साथ जुड़ी हुई है और ऐसे बहुत सारी फूड चेन्स एक साथ जुड़ी हुई होती है, कनेक्टेड होती है, और वही कनेक्शन से फूड वेब बन जाती है। सो फूड चेन मीन्स interconnected food chains in an ecosystem. This is called as a food web. Energy pyramid, it is the next topic in that. Energy pyramid is a diagram which shows the energy levels of the different trophic level. When the organism feed upon each other, it is the energy which is transferred from one trophic level to another trophic level. First trophic level is a producers, while second trophic level is form of herbivores, and the third trophic level is form of carnivores. Fourth trophic level is a apex carnivores. These are the levels, trophic levels in the energy pyramid. See here the diagram is shown about the trophic level. Amount of matter and energy gradually decreases from producers to top consumers. तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे 10,000 प्रोड्यूसर्स की एनर्जी है, वो जब प्राइमरी कंज्यूमर्स के पास जाती है तो 1000 हो जाती है, जब वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स के पास जाती है तो 100 हो जाती है, और जब अपेक्स कंज्यूमर के पास जाती है तो मैटर एंड एनर्जी डिक्रीजेस, दैट इज बिकम्स एज अ 10 किलो कैलोरी. दिस इज द presentation. It shows the energy and the matter decreases as per the trophic level. In energy pyramid, how the energy travels up in a food chain through the different trophic level, that is shown in this picture. Next topic is a biogeochemical cycle. फर्स्ट विल सी द डेफिनेशन. हम लोग पहले डेफिनेशन देखेंगे उसकी. द साइक्लिक फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स विद इन एन इकोसिस्टम. इकोसिस्टम के अंदर न्यूट्रिएंट्स का जो साइक्लिक फ्लो होता है उसे ही बायोजियोकेमिकल साइकिल बोलते हैं. तो यहाँ पे it provides the different type of nutrients to all living organisms for their growth and the development. तो उनके ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जो भी न्यूट्रिएंट्स लगते
वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स ये बायोजियोकेमिकल साइकिल से मिल जाते। दिस न्यूट्रिएंट्स आर कंटिन्यूसली ट्रांसफर्ड फ्रॉम एबायोटिक टू बायोटिक फैक्टर्स एंड वाइस वर्सा। मीन्स व्हाट, ये जो न्यूट्रिएंट्स, द न्यूट्रिएंट्स विच आर यूजफुल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ living organism, these nutrients are continuously transferred from, continuously transfer हो जाते एबायोटिक फैक्टर से बायोटिक फैक्टर में, बायोटिक फैक्टर से फिर से एबायोटिक फैक्टर में, ऐसे एबायोटिक टू बायोटिक और बायोटिक टू एबायोटिक, ऐसे साइक्लिक फॉर्म में ये न्यूट्रिएंट्स कंटिन्यूसली ट्रांसफर होते रहते। सी द टाइप्स ऑफ बायोजियोकेमिकल साइकिल। तो यहाँ पे दो टाइप्स है, एक गैसियस साइकिल एंड सेकेंड वन इज द सेडिमेंट्री साइकिल। तो फर्स्ट विल सी द गैसियस साइकिल। तो गैसियस साइकिल इट इज फाउंड इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। गैस एटमॉस्फेयर में होते हैं, सो दिस गैसियस साइकिल्स इज फाउंड इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। ये आपको पॉइंट समझ में आ गया। तो इसमें कौन से साइकिल रहेंगे? तो इट इंक्लूड्स नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, वाटर वेपर साइकिल। तो ये जो तीन साइकिल है इसमें आते हैं, इसमें कार्बन साइकिल भी आता है। ओके, सो दिस इज अबाउट द गैसियस साइकिल। सेकेंड टाइप है सेडिमेंट्री साइकिल। दिस सेडिमेंट्री साइकिल इट इज फाउंड इन सॉइल, सेडिमेंट एंड द सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ द अर्थ। ये साइकिल है, ये सॉइल में सेडिमेंट एंड सेडिमेंट्री रॉक्स में ये पाया जाता है। तो इसमें इट इंक्लूड्स आयरन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन साइकिल। दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट of this chapter, always comes in the exam. So this nitrogen cycle, in this atmospheric nitrogen moves to the soil, from soil to the plants, from plants to the animals, and from all the living beings to the soil and back to the atmosphere from the soil. This cyclic journey of the nitrogen is called the nitrogen cycle. तो क्या है, किससे ये साइक्लिक जर्नी होता है? तो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन है वो सॉइल में आता है, सॉइल से प्लांट में जाता है, प्लांट से एनिमल के पास जाता है, और वही सब प्लांट्स और एनिमल के पास से वही नाइट्रोजन फिर से एटमॉस्फेयर में आता है। ये जो साइक्लिक जर्नी है इसे नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। प्लांट्स कैन नॉट टेक द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एज इट इज, क्योंकि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है लेकिन प्लांट्स उसे डायरेक्टली नहीं ले सकते। देयरफॉर दे टेक अप वेरियस कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन दैट आर अवेलेबल इन द सॉइल। तो ये क्या करते हैं, जो नाइट्रोजन के वेरियस कंपाउंड्स सॉइल में अवेलेबल है वही वो प्लांट्स ले लेते। फॉर द प्लांट्स नाइट्रोजन कंपाउंड इन द सॉइल इज द ओनली सोर्स ऑफ द नाइट्रोजन। तो एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन प्लांट्स डायरेक्टली नहीं ले सकते, उसके जो नाइट्रोजन के कंपाउंड है वही लेते। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन किया जाता है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी क्या है? It is the process in which nitrogen is converted into the compounds such as the nitrates and the nitrites. नाइट्रोजन फिक्सेशन के दो प्रोसेस है, वन इज द फिजिकल फिक्सेशन एंड सेकेंड वन इज द बायोलॉजिकल फिक्सेशन। तो आइए हम फर्स्ट देखते हैं फिजिकल फिक्सेशन ऑफ अ नाइट्रोजन। फिजिकल फिक्सेशन मीन्स व्हाट? The lightning in the sky brings oxidation of atmospheric nitrogen. जो लाइटनिंग स्काई में होती है उसमें एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन किया जाता है और इट कन्वर्ट्स इनटू द नाइट्रोजन ऑक्साइड, और उसे नाइट्रोजन ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है ऑक्सीडेशन के बाद। नाइट्रोजन ऑक्साइड मिक्स इनटू रेन वाटर and forms the nitric acid and the nitrous. तो
वही जो नाइट्रोजन ऑक्साइड तैयार हो जाता है रेन वाटर के साथ, वो डिज़ोल्व हो जाता है और उससे नाइट्रिक एसिड एंड नाइट्रस तैयार हो जाता है। विथ रेन वाटर दिस एसिड मिक्स विथ द सॉइल। वही रेन वाटर जब ज़मीन पे आता है तो वहाँ सॉइल के साथ वो मिक्स हो जाता है। इट अंडरगोज द केमिकल रिएक्शंस एंड फॉर्म द डिफरेंट कंपाउंड्स ऑफ द नाइट्रोजन। और ये डिफरेंट कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन यहाँ पे फॉर्म हो जाते। नेक्स्ट प्रोसेस इज द बायोलॉजिकल फिक्सेशन. In that the rhizobium bacteria which are present in the root nodules of the leguminous plants do the function of the biological nitrogen fixation. जो राइजोबियम बैक्टीरिया लेगुमिनस प्लांट के रूट नोडुल्स में होते प्रेजेंट होते, वो क्या करते, ये बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कर लेते हैं. दूसरे है एजोटोबैक्टर एंड क्लोस्ट्रीडियम. ये जो बैक्टीरिया, दिस बैक्टीरिया अल्सो कैरी द फंक्शन ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन. ये बैक्टीरिया भी नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो कार्य है, फंक्शन है, वो करते हैं. थर्ड है द ब्लू ग्रीन अल्गी एंड द एनाबिना. दिस अल्सो परफॉर्म द बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन. दो आप लेक में या रिवर में जो ब्लू ग्रीन अल्गी देखते हो, तो ये ब्लू ग्रीन अल्गी भी नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट द नाइट्रोजन फिक्सेशन. नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्सीजन साइकिल. मीन्स वी नो दैट द 21% ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर. तो एयर में 21% ऑक्सीजन अवेलेबल होता है एंड इट इज़ स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर. वी नो, वी स्टडीड दैट in aquatic ecosystem. Terrestrial plants and the animals get oxygen from air. तो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स एंड द एनिमल्स होते हैं, वो तो ऑक्सीजन एयर से लेते हैं. बट एक्वेटिक एनिमल्स एंड द प्लांट्स दैट एब्सॉर्ब द ऑक्सीजन विच इज़ डिजॉल्व इन द वाटर. जो वाटर में ऑक्सीजन डिजॉल्व हुआ है, वो एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स रेस्पिरेशन के लिए यूज़ करते. ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन प्रोसेस carbohydrates are oxidized and the carbon dioxide is released into the atmosphere. So this is about the oxygen cycle. We can see this oxygen cycle in the diagram is shown here. So in that diagram you can see the how this oxygen cycles works. In respiration process, both the plants and animals oxidize these carbohydrates and evolve the carbon dioxide during the respiration process. We know and we studied already. In anaerobic respiration, microorganism produces the carbon dioxide. तो हम लोगों ने देखा है कि बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो विदाउट ऑक्सीजन जीते हैं, तो उन्हें बोलते हैं अनएरोबिक रिस्पायर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. तो ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है यानी कंबशन. तो कंबशन में भी द ऑर्गेनिक कार्बन डाइऑक्साइड अंडरगोज द ऑक्सीडेशन प्रोसेस एंड प्रोड्यूस द कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीजेस सम एनर्जी. तो ऑक्सीजन साइकिल में हम लोग कंबशन, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन और जो रेस्पिरेशन इन एक्वेटिक एनिमल्स एंड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में होता है, वो पॉइंट याद रख के ये ऑक्सीजन साइकिल है, वही उसे हम अच्छी तरह एग्जाम में लिख सकते हैं. थर्ड साइकिल है कार्बन साइकिल. कार्बन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर रीचेस द प्लांट्स. जो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में है, वो प्लांट्स में आ जाता है. और कार्बन इन द फॉर्म ऑफ फूड इज कैरीड टू द प्लांट्स. तो प्लांट्स क्या करते हैं, जो कार्बन इन द फॉर्म ऑफ फूड है, वो प्लांट्स ले लेते हैं फ्रॉम प्लांट्स, दैट इज कम्स टू द एनिमल्स. तो यही प्लांट्स जब एनिमल्स खाते हैं, तो वो कार्बन जो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, वो एनिमल्स में आ जाते. कार्बन रिचेस टू द एटमॉस्फेयर फ्रॉम द बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. जैसे ये
प्लांट्स एंड एनिमल्स जब रेस्पिरेशन करते हैं तो इन दिस रेस्पिरेशन प्रोसेस दिस कार्बन डाइऑक्साइड दैट अगेन गोज इनटू द एटमॉस्फेयर. So this process of carbon coming from atmosphere to the plants and animals and again go into the atmosphere, it is called as the carbon cycle. I hope that आपको ये कार्बन साइकिल कैसे वर्क्स करता है ये आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा. और इसके पॉइंट से इसमें रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, कंबशन, डिकम्पोजिशन ऑफ डेड एनिमल्स, ऐसे ये याद रख के आपको कार्बन साइकिल के बारे में एग्ज़ाम में लिखना है. कार्बन डाइऑक्साइड इज़ द मेन सोर्स ऑफ द कार्बन. तो कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड ये मेन सोर्स है. तो ग्रीन प्लांट्स दैट प्रोड्यूस द कार्बोहाइड्रेट्स ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. वी नो दैट द all the green plants are autotrophic. Autotrophic means in the presence of sunlight and carbon dioxide, these plants making their own food. So these green plants produce the carbohydrates during the photosynthesis process. Carbohydrates in the form of food reaches the plants to the herbivores. Carbohydrates जो फूड के फॉर्म में होता है वो प्लांट्स में से हर्बीवर्स एनिमल्स जब उसे प्लांट्स को खाते हैं तो वो हर्बीवर्स एनिमल्स में आ जाता है. वही हर्बीवर्स एनिमल्स को जब कार्निवर्स एनिमल्स खाते हैं तो सेम कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो कार्निवर्स एनिमल्स में आ जाते हैं. सो दैट इज़ द नेक्स्ट पॉइंट, हर्बीवर्स टू द कार्निवर्स. दिस इज द फ्लो ऑफ कार्बन फ्रॉम atmosphere to herbivores, carnivores and again into the atmosphere. So this is all about the carbon cycle. Another ways in this process of the combustion of coal, wood, petrol, etc. oxygen is used and the carbon dioxide is released with the energy. तो ऐसे जो combustion process में कोल होता है, वुड होता है, पेट्रोल होता है, ये जब जलते हैं तो उनमें से भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है. ये कंबशन प्रोसेस होती है. इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस द ग्रीन प्लांट्स यूज द कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड रिलीज द ऑक्सीजन टू द एटमॉस्फेयर. तो ऐसे ऑक्सीजन भी क्या हो जाता है तो रिलीज हो जाता है एटमॉस्फेयर में. द रिलीज ऑक्सीजन मिक्स्ड विथ एयर एंड साइकिल इज़ कंप्लीटेड. यहाँ पर भी ये साइकिल कंप्लीट हो जाता है. तो मुझे आशा है कि अभी तक ये पूरा एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम ये चैप्टर जो मैंने आपको पढ़ाया ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा. अगर है तो आप कमेंट्स में लिखिए और ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो शेयर करो, लाइक करो और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत. थैंक यू.